السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ایک بہت زبردست آڈیو آپ حضرات کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس آڈیو کے اندر دیوبندی مولوی پہلے شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اس کے بعد اسی فتوے سے ایسا پھنس جاتا ہے وہ اشرف علی تھانوی اور تمام دیوبندی علماء کافر و مشرک بدعتی اور قبر پرست ثابت کر کے یہ بھاگتا ہے۔ یہ دیوبندی مولویوں کو اتنا عقل نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں نے کیا کیا کتابیں لکھ کے رکھے، پہلے پڑھے بعد میں فتویٰ لگائے۔ سامعین حضرات، ایسے اچھے اچھے ویڈیو آپ سبھی حضرات کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، ہمارے دونوں چینل سبسکرائب کیجئے۔ بار بار گزارش ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی حضرات سے، عزیزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ پہلے سبسکرائب کیجئے، بعد میں اس آڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے مالی امداد بھی کرے۔ جہاں وہابیوں کا گڑھ ہے وہاں جا کر ہم سنیت کے کام کر رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کے امداد کے بغیر ہم کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ 3-4 مہینے سے میں اپنے پیسے سے مدرسے کا کرایہ بھر رہا ہوں، اپنے پیسے سے کرایہ بھر رہا ہوں۔ ہر مہینہ 4-5 ہزار روپیہ کرایہ اور کرنٹ بل ہے، حافظ سب کا تنخواہ ہے، اور میرے اخراجات ہیں، بچوں کے لیے کتابیں وغیرہ سب ضروریات ہے۔ 3-4 مہینے سے میں اپنے پیسے سے کرایہ سب کچھ بھر رہا ہوں، بغیر فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہوں۔ تو آپ کی امداد کی سخت ضرورت ہے۔ یہ گوگل پے نمبر ہے، اس نمبر سے آپ جتنا ہو سکے ہر مہینہ مالی امداد کریں۔ آپ مدد کریں گے تبھی کام ہو پائے گا۔ اور سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں میرے دونوں چینل سبسکرائب کریں۔ یہ چینل کا نام ہے فیضان مجاہد ملت، آپ جس میں آڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور دوسرے چینل ہے جس کا فوٹو دکھ رہا ہے، فوٹو میں نام ہے ترجمان اہل سنت۔ نام لکھیے، ہمارا چینل آئے گا، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اہل سنت کے فروغ کے لیے آپ بھی جان مال خرچ کرے، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ ہاں، السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی سر، حضرت ہم کو شرک کے بارے میں تھوڑا معلومات کرنی تھی۔ تاکہ شرک کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کے بارے میں معلومات کرنا ہے۔ کیا ہوتا ہے شرک کے بارے میں فرمائیے۔ تو ہاں، بتا دیجیے، آپ مولانا صاحب ہیں نا، بتا دیجیے۔ شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اللہ کے جیسا ماننا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی کوئی چیز مانگنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک نا؟ جیسے ایک شرک ہے کہ جیسے ابھی چھوٹی موٹی بات ہے، درگاہ سے مانگتے ہیں لوگ، ٹھیک نا؟ یعنی کوئی درگاہ پہ جا کے اپنی اولادیں منت مانگتے ہیں کہ فلاں بابا ہم کو ایک اولاد دے دے، ٹھیک؟ اولاد دینے کی ذمہ داری ہو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اولاد دینا نہ دینا، ٹھیک نا؟ تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ یہ معبود باطل جو مورتی کو مانتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت قرآن میں ہوگا نا کوئی آیت، بتائیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں اپنے آپ کے اوپر ہی ظلم کرنا، کسی کو شریک ٹھہرا کر اپنے ذات کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ حضرت جیسے کہ قرآن میں ہوگا نا کہ ہاں تم کسی سے نہیں مانگ سکتے ہو سوائے اللہ سے، تو یہ اس کا آیت کوئی ہوگا تو ہم بتا دیجیے تاکہ ہم اس کو ڈھونڈے، دیکھیں، سمجھیں کیا ہے۔ جیسے فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، فلا تدعوا، کہ تم نہ بلاؤ مع اللہ کے ساتھ، تدعوا مع اللہ آخر، دوسرے کسی کو، یا اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ تم کسی کو اس کے ساتھ نہ ملاؤ یا نہ بلاؤ۔ جی جی، اچھا، یہ تو مولانا صاحب، میں بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا، بہت اچھے دلیل دے رہے تھے آپ۔ تو میں نے ایک کتاب پڑھی، میرے پاس ابھی کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے
इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक। ये लिखने वाले जी हैं हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, लिखा हुआ है। जी ये किताब में ये जी लिखे हैं पेज नंबर 115, जी पेज नंबर 123। तो हजरत का हाँ, एक जोलाहा मुरीद था, ये वाकया लिखा हुआ है। और ये वाकया हजरत की खिदमत में निदाए रूह का वो सबक, ग़िज़ाए रूह का वो सबक शाह नूर मोहम्मद साहब की शान में है, सुना रहा था। जी जब जी असर मज़ार शरीफ का बयान आया, जब मज़ार शरीफ का बयान आया तो आपने फरमाया मेरे हजरत का एक जोलाहा मुरीद था जो बाद इंतकाल हजरत के मज़ार के पास जाकर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, जी रोटियों को मोहताज हूँ, कुछ दस्तगिरी फरमाइए। अरे भाई बैकग्राउंड की आवाज़ बंद करो, अगर आवाज़ आ रही है तो म्यूट कर दो। आप बता रहे कि हजरत एक जोलाहा मुरीद था जो जाकर कहा कि मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ, आप मदद फरमाइए। तो कब्र से आवाज़ आई कि रोज़ाना 2 आना मेरे कब्र से तुमको मिला करेगा। एक मर्तबा मुलाकात हुई, हजरत थानवी साहब फरमाते हैं कि उनसे मेरी एक मर्तबा मुलाकात हुई तो कहने लगे मुझे तो यहीं से वजीफा मुकर्रर है। तो आप बताइए, हजरत थानवी साहब तो फिर मुशरिक हो गए। देखिए यहाँ जो खबर पे देखने का उनसे मांगा नहीं गया कि मेरी मुलाकात पूरी करो, किसी का वसीला लगा सकते हैं, ठीक है, बराहे रात किसी से, अरे वो भी किसी मुर्दे से मांगना ये जायज नहीं है, क्योंकि मुर्दा कैसा भी हो वो खुद एक सुबहान अल्लाह का मोहताज होता है। दुनिया में जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसके आमाल के रास्ते खुले होते हैं, ठीक। मरने के बाद कितना भी कुछ कर ले उसके लिए जो है नेकी नहीं लिखी जाएगी। हजरत आपने जो कहा यहाँ मांगा नहीं गया, ये हजरत अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं कि बाद इंतकाल हजरत के मज़ार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, मोहताज हूँ, रोटियों को मोहताज हूँ, दस्तगिरी फरमाइए। मदद मांगा जा रहा है मज़ार से और हजरत थानवी साहब उसकी तायद फरमा रहे हैं। एक वाकया मेरे से मांगो ऐसा कहा है उन्होंने। हजरत थानवी साहब वाकया बयान कर रहे हैं और तायद उस किताब में लिखने का मकसद क्या है? तशरीह करना, किसी चीज की तशहीर करने का मतलब है उसका प्रचार करना, और प्रचार करना तायद ही होता है। जैसा आपके बारे में मैं प्रचार करूं, इसके बारे में मैं कहूंगा, जब तक मैं किताब को नहीं देखूंगा या नहीं पढ़ूंगा, उसमें बहुत सारे मतलब क्या होता है किताब में कि थोड़ा सा एक दूसरा पढ़ने से मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा वाकया हमने भी निकाले किए हैं। हजरत जल्दबाजी ना फरमाए, पूरी किताब एक पूरा वाकया मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और एक वाकया मैं पढ़कर सुनाता हूँ। ये है हिकायत नंबर 301, हिकायत औलिया। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब लिखते हैं, किताब का नाम है हिकायत औलिया, हिकायत नंबर 315, हिकायत नंबर 301 और पेज नंबर है 251। और एक बात मैं कहूँगा, जो मुअल्लिफ होते ना शुरू में, यानी पहले या दूसरा सफा होगा, ये वाकया पूरा वाकया पहले सुने हजरत, पहले पूरा वाकया सुने। फरमाया कि मुईनुद्दीन साहब हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब के सबसे बड़े साहिबजादे थे। ये याकूब नानूतवी दारुल उलूम देवबंद के शाइखुल हदीस मौलाना याकूब नानूतवी साहब, उनका वाकया बयान फरमाते हैं। हजरत मौलाना की एक करामत जो बाद वफात वाक़ई हुई बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारे नानोता में जाड़ा बुखार की बहुत कसरत हुई, सो जो शख्स मौलाना की कब्र से मट्टी ले जाकर जिस्म पर बांध लेता उसे ही आराम हो जाता। बस लोग बाकसरत मट्टी ले गए, जब इतनी कसरत से मट्टी ले गए, जब भी कब्र पे मट्टी डालो तभी मट्टी ख़त्म। कई मरतबा डाल चुका, परेशान होकर एक दफ़ा मौलाना की कब्र पर जाकर कहा कि ये साहिबजादे बहुत तेज़ मिजाज थे। उन्होंने कहा कि आपकी तो करामत हो गई। किससे कह रहे? साहिब कब्र से।
आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत। याद रखो, आप अगर किसी को शिफा कोई अच्छा हुआ तो मट्टी ना डालेंगे और ऐसा ही पड़े रहना, लोग जूता पहने तुम्हारे ऊपर वैसा ही चलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम ना हुआ। जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ही ये शोहरत हुई कि अब आराम ना नहीं होता। फिर लोगों ने मट्टी ले जाना बंद कर दिया। तो कब्र से शिफा मांगना, कब्र वाले शिफा दे सकते हैं। दाने दाने को कब्र वाले खुद मोहताज होते हैं, आपने बताया। यहाँ तो कब्र वाले शिफा भी दे रहे हैं। और जब गुस्सा आया साहिबजादे को, गुस्सा आया, साहिबजादे ने जाके कहा आप शिफा हुई तो मट्टी नहीं डालूंगा। किससे कहा? साहिब कब्र से कहा। तो साहिब कब्र से कहना, लेन देन सब चीज जारी है। फिर आप कैसे मना करते हो? शिरक का इतना बड़ा तोहमत लगा रहे कि मुशरिक है। मुशरिक कहना तो सबसे बड़ी गाली है। और आपके हिसाब से अशरफ अली थानवी भी मुशरिक हो रहे हैं। देखो, उन्होंने ये कब्र से शिफा मिलना एक तरह से शैतानी धोखा है। ठीक, जैसे अभी झाड़ फूक का दौर निकला है, ये फला कब्र से ये होता है, फला कब्र से होता है। बाज दफा क्या होते हैं, शैतान इंसान को बहकाता है, शैतान इंसान पर सवार होता है, उसको तरह तरह से बीमार करता है। फिर वो कभी न जाने किसी कब्र पे जाके मांगता है तो उसे शिफा मिल जाती है। ठीक, फिर वो क्या करता है, फिर वापस उस पर कुछ अच्छा करता है, फिर वापस शैतान सवार होता है। फिर वो आदमी सोचता है कि अरे फला कब्र पे जो है हम गए थे तो उससे हमें शिफा मिल गई। फिर वो इंसान उस कब्र पे जाता है और इस तरह होते होते इतना कब्र वालों से मांगना होता है, वो अल्लाह को छोड़कर कब्र परस्ती में लग जाता है। इसलिए कब्र परस्ती से माना किया। वहाँ जो आप कह रहे हैं साहिब कब्र से कहा गया, अगर आप इसके बाद कोई शिफा करेंगे, हो सकता है वहाँ भी शैतानी धोखा हो कि शैतान वहाँ इंसान के दिल में वसवसा डाल के शैतान उसी कब्र पर ले जाता हो, इसलिए वहाँ पे बना किया। क्या आप शिफा नहीं देंगे, इसका बुरा ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर वाकया पूरा समझे मौलाना साहब, आप देवबंद के मौलाना हैं। आप ये समझे कि अशरफ अली थानवी साहब वाकया लिख रहे हैं और ये वाकया हुआ है दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस याकूब नानूतवी के कब्र पे। याकूब नानूतवी के कब्र से शिफा मिल रहा था, लोग मट्टी ले जाके बांध रहे थे तो शिफा हो रहा था। तो और उनके साहिबजादे, याकूब नानूतवी के साहिबजादे, उनको गुस्सा आ गया कि हम बार बार मट्टी डाल रहे हैं और लोग मट्टी ले जा रहे हैं। तो जाकर कब्र वाले से कहा कि आप शिफा नहीं होना चाहिए, तुम शिफा दे रहे हो, आप शिफा मत दो। अब उनको शैतान का धोखा उनको भी हो रहा था। उनका लड़का आप शिफा दे रहे हैं, ये गलत है। ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि ऐसा लिखा हो कि आप शिफा दे रहे हैं, आप कोई शिफा नहीं कीजिएगा। तो आप ये कब्र वाले से क्या कह रहे हैं? वाकया जरा समझे ना, वाकया आप जो लिखा हुआ अशरफ अली थानवी साहब की इबारत, वो मैं पढ़ रहा हूँ, इबारत हूबहू पढ़ रहा हूँ। ऐसा कीजिए तो मुअल्लिफ का जो नाम होता है शुरू में किताब के दूसरे तीसरे सफा पे, वो कितने सफा है, क्या क्या है, वो भेजे मेरे को, और जो वाक़या लिखा है वो भेजे मेरे को। ये बात मैंने कम से कम 10 मौलाना को जब बात बताए तो बोले किताब दिखाइए। किताब दिखाने के लिए फिर कट करके जब दोबारा कॉल लगाया तो कॉल नहीं उठा रहे। तो आप भी इस तरह फरार इख्तियार ना करें अगर आप अपने अकाबिरीन को हक पे समझते हैं। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, बदतमीजी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जवाब मांग रहा हूँ। हाँ, वो देख रहा हूँ मैं आपसे, ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं जो फौरन बदतमीजी उतर जाते हैं। तो मैंने तो आपको बदतमीजी नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो आप मुझे अगर दोबारा कॉल करूं तो कॉल उठाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह आपका कॉल जो है अभी मैं 2 मिनट में। तौसीफ भाई, तौसीफ भाई आप भी लाइन पे है ना? अफजल नाम है। हाँ, तो आप ये इबारत उनका व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, ये मौलाना साहब का व्हाट्सएप बना होगा तो आप कौन किस वहाँ से भी इंतकाल हो गया है। ठीक, ये जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के मुझे सुना रहे हैं, मुझे भेजिए, मैं इंशाल्लाह जब तक काम पे नहीं पहुँचता हूँ तब तक मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, ये मांगने के ताल्लुक से आपने कहा कब्र वालों से मांगना शिरक है और कोई मुर्दा किसी को नहीं दे सकते, कब्र वाले किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो इस ताल्लुक से ही मैं बात करूंगा और मैं कॉल कट करके अभी आपको कॉल लगाते हैं। ये इबारत आपको पहले भेजते हैं, फौरन आपको कॉल लगाते हैं, आप समझकर मुझे समझाएं, ठीक है? हाँ, पहले वो मौलवी का पूरा जो पहले पूरा किताब का
किताब किसने लिखी है वो सब भेजिएगा। हम जहाँ हाँ, पे ये वाक़या है वो भेजिएगा। मुकम्मल इबारात आपको अभी भेजा जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी जी जी। अच्छा ठीक है। हाँ तो सिर्फ भाई फ़ोन काट दीजिए, फिर उनको भेजिए, मैं जो भेज रहा हूँ। हाँ जनाब, मैंने भेजा, वो दोनों इबारत आपको भिजवाया। अच्छा फिर से भेजे हैं? हाँ व्हाट्सएप पे भेजे, वीडियो नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने वो किताब का फोटो भेजा, देख लीजिए। हाँ हाँ, मैंने तो वो पढ़ लिया, जो आपने भेजा था मैंने पढ़ लिया वो। तो हमें जरा समझाएं कि ये शिरक होगा या नहीं होगा। देखिए उन्होंने तायद नहीं की है, शिर्क किसने किया इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ महानानसरी के बड़े साहबजादे जिसमें लिखा है कि तेज मिजाज जिसे नानकवन में दार बुखार का एक वबा समझिए, एक वबा फैली। हाँ। लोगों ने किताब बना लिया कि वहाँ की मिट्टी लाकर अपने गले में कहीं भी बांधते थे, उन्हें शिफा मिल जाती थी। ठीक, ये जो किताब तो है, ये कसरत होने लगी। हाँ ये कसरत होने लगी तो उनके साहबजादे ने, अब उनके साहबजादे यहाँ आलिम है कि नहीं है वो भी यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक, आलिम है, आलिम है, किताब में पढ़िए ना, साहिबजादे भी आलिम है। हाँ हाँ अब यहाँ मौलाना लिखा हुआ है। ये आलिम का नहीं लिखा है कुछ भी, इतना लिखा है। आप पढ़िए, किताब पढ़िए तो आपको पता चलेगा वो साहिबजादे भी मौलाना ही है। और सुनिए हजरत मौलाना साहब, सुनिए, जब भी कोई वाकया, एक तो किताब का नाम है हिकायत औलिया, यानी औलिया इकराम की हिकायत लिखे गए किताब में। और जो हिकायत का ये उसूल है कि हिकायत में अगर कोई अकायद की खामी है तो अकायद की खामी बयान किया जाता है, और अगर खामी बयान नहीं किया गया तो समझो वो तायीद ही है। दोनों वाकया में तायीद ही है, और तशहीर करना भी तायीद होता है। कौन हंस रहे हैं? मैं काम पे आया हुआ हूँ। तो आप ये वाकया का आप जो दिफा कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेजा है, बिल्कुल बेजा है, इसकी कोई भी आप दिफा करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। आप जो उसूल बनाए कि कब्र से मांगने वाला मुशरिक है और मांगने की तायद करने वाला भी यहाँ मुशरिक होगा, अशरफ अली थानवी को आप शिरक से नहीं बचा सकते। अशरफ अली थानवी यहाँ मुशरिक हो रहा है। मेरा हाँ, ये हम किसी को बता नहीं सकते हैं और ये किसी को मुशरिक बना नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो आप जो उसूल बना रहे हैं ये उसूल ही गलत है ना। आपके उसूल से अगर सारे देवबंदी, इस वक्त अशरफ अली थानवी मुशरिक हो गया तो देवबंद में कोई नहीं बचेगा, सारे देवबंदी मुशरिक हो गए। ये कुरान की आयत जो है फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, एक जगह पे है इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, क्या इसको भी आप दिखा देंगे? इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, ये इसमें इस इन्न अशिरक जुल्मुन अजीम यहाँ कहीं है कि मजार से मांगना शिरक है? शिरक तो जुल्म अजीम है ही। फला तदउ मअल्लाह, अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, उससे साहिब कब्र मुराद है क्या? यहाँ कहीं भी इस आयत की देखिए, जो आप कुरान की तफसीर कर रहे हैं ना, तफसीर बिर राय करने वाला जहन्नमी है, जानते हैं? ये आपने हदीस पढ़े, जो कुरान में अपनी राय पेश करे वो जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम बना ले। कुरान में अपनी राय से कुरान की तफसीर करे, तफसीर भी राय करे तो वो गुमराह। जैसा 72 फिरके हैं, पूरे जहन्नमी 72 फिरके कुरान और हदीस में अपनी राय से तफसीर करते हैं। मुहद्दिसीन की, असलाफ की 1400 साल से, सहाबा इकराम से लेकर आज तक मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने जो पेश किया है वही हमें पेश करना है। हम हमारे असलाफ के ताबे हैं, हम सवाद आजम के ताबे हैं, और हमारी एक जमात है जिसका नाम है सवाद आजम अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत से हटकर अपने मन से आप तशरीह नहीं, किस तफसीर में ये लिखा हुआ है कि ये फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा से ये मुराद है कि साहिब कब्र से मदद मत मांगो। साहिब कब्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब कब्र ही थे। मेराज के वाक़या में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, 50 वक़्त नमाज मिली, नमाज लेकर आ रहे थे,
तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब कब्र ही थे, और साहिब कब्र ने हमें मदद किया, हमारी 50 नमाजों से घटाकर हमें 5 नमाज कर दिया। ये साहिब कब्र की मदद है। और यह वाकया मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, यह वाकया आपके मनाजिर हसन गिलानी ने किताब में लिखा है। किताब का नाम है सवानेह कासिमी। उसके अंदर लिखे हैं कि साहिब कब्र से मदद मांगने का हम मुनकिर नहीं है, यानी साहिब मज़ार से हम मदद मांगते हैं। तो साहिब मज़ार से मदद मांगने वाला आपके नज़र में, जो आप देवबंद के छोटे मौलवी हैं, आप कह रहे हैं शिरक है, आपके अशरफ अली थानवी कह रहे हैं शिरक नहीं है, हेलो मनाजिर हसन गिलानी हेलो कह रहे हैं शिरक नहीं है। तो हम आपकी बात माने या मनाजिर हसन गिलानी साहब की बात माने, अशरफ अली थानवी की बात माने? इसे मैं भी काम था क्यों हजरत, ठीक है। तो आप जरा इसे, आपकी इस्लाह के लिए ही हमने कॉल किया था। आप इस तरह की जो गलत फहमी का शिकार है, तफसीर भी राय करके गुमराही की तरफ जा रहे हैं, कौम को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, और बिला वजह मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों पर शिरक का फतवा लगा रहे हैं। कितनी बड़ी गाली है शिरक, बताइए। जहाँ शिरक नहीं हो रहा है वहाँ शिरक बना रहे हैं। हाँ, बहुत से सच में जो आयत की आप तफसीर कर रहे हैं, कोई मुफस्सिर ने इस आयत से साहिब कब्र मुराद नहीं लिया, आप कैसे मुराद ले रहे हैं? इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज रात 9 बजे बताऊंगा। अपनी इस्लाह कर ले हजरत। इस तरह शिरक का फतवा लगाएंगे ना तो हजरत बहुत बड़ा गुनाह होगा आपको, आपकी नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे हजरत। आप ऐसा ना करें, मुसलमानों पर जुल्म ना करें। आज मुसलमान ऐसे ही परेशान है, और आप मुसलमानों के परेशानी में इजाफा ना करें, ठीक है? आप समझे और हम गलत है तो हमें समझाएं। हाँ, आप इन किताबों को अच्छी तरह पढ़ें, मुताला करें। शिरक क्या चीज़ है वो हम बताएंगे आपको। शिरक की जो तशरीहात मुहद्दिसीन ने, शारिहीन हदीस ने किया है, वो तमाम तफसीलात हम पेश करेंगे। उससे कोई भी इस ज़माने में कोई भी एक भी बरेलवी शिरक में आप मुब्तला नहीं पाएंगे। जिनको आप शिरक समझते हैं वो शिरक नहीं है, हकीकत में शिरक कुछ और है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और शिरक में मुब्तला कौन है वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है? आप समझे, बगैर समझे आप आलिम होकर देवबंद की भी आप बदनामी कर रहे हैं, और मुसलमानों को बिला वजह मुसलमानों पर तानो तशनी करके अपने अमाल बर्बाद कर रहे हैं। आप बराए मेहरबानी मुसलमानों पर ऐसा जुल्म ना करें। अल्लाह ताला हिदायत दे आपको, आपके जैसे मौलवियों को, और मुसलमानों को हकीकत में शिरक क्या चीज़ समझने की और शिरक से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों से मोहब्बत है। अल्लाह वालों को वफात के बाद अल्लाह कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। अल्लाह ताला इख्तियारात देता है, और अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की अता से अल्लाह वाले मदद करते हैं। तो अल्लाह वालों से मदद मांगना यह हकीकत में अल्लाह ही की मदद है। शिरक वह है कि अल्लाह के दुश्मन से मदद मांगे, बुतों से मदद मांगे, या फिर कोई ऐसे जो अल्लाह के दुश्मन है, जो अल्लाह के एगनिस्ट है। अल्लाह वाले अल्लाह के एगनिस्ट नहीं, अल्लाह वाले अल्लाह की जमात है। अल्लाह कुरान में फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की जमात है। तो अल्लाह की जमात के जो नुमाइंदे हैं, अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, उनकी जो पावर है वो अल्लाह ही की अता से है। जैसा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, आए नबी आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, और हजरत उमर आपके लिए काफ़ी है, मोमिनीन आपके लिए काफ़ी है। यह आयत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो इससे साबित हुआ अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह काफ़ी होने में तो कोई कमी नहीं थी ना। फिर हजरत उमर को भी अल्लाह ने काफ़ी फरमाया, क्यों? तो हजरत उमर जो काफ़ी है अल्लाह की अता से है। अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह खुद से काफ़ी है, किसी की अता से नहीं। लेकिन अल्लाह ताला हजरत उमर को काफ़ी बना दिया कि काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दे, काफिरों के सामने बहादुरी से डटे रहे, काफिरों का मुकाबला करे। इस वजह से हजरत उमर को अल्लाह ने काफ़ी बनाया, समझे? तो अल्लाह ताला
अल्लाह वालों को मदद के इख्तियार दिया है। ये कुरान और हदीस से साबित है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम गायबी तौर पर मदद करते हैं। इस वजह से हदीस पाक में है, जंगलों में कहीं बियाबन में रास्ता भूल जाओ तो पुकारो या इबाद अल्लाह आइनूनी। हदीस पाक में इसकी तरगीब दी गई है, या इबाद अल्लाह आइनूनी, आय अल्लाह के बंदे मदद करो। जंगल में अल्लाह के बंदों से मदद मांगा जा रहा है। हदीस में तरगीब दी गई है, शिरक नहीं है। आप कुरान और हदीस की तमाम आमाल, कुरान और हदीस के तमाम जो चीज़ें हैं उन सबको आप शिरक कह रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। ये देवबंद का दोगलापन है कि आपने बुजुर्गों को वली बनाकर उनसे हर तरह की मदद मंगाई जा रही है, और जो दूसरे बुजुर्ग हैं जो हकीकत में बुजुर्ग है, उलमा देवबंद तो बुजुर्ग क्या मुसलमान भी नहीं, उनको बुजुर्ग बनाकर उनसे मदद मंगाई जा रही है, उनकी मदद को जायज़ ठहराया जा रहा है। और जो हकीकत में बुजुर्ग है, वली है, सहाबा इकराम है, उनके मदद को शिरक कहा जा रहा है। ये उलमा देवबंद की दोगलापन है। अपनी किताब में एक तो शिरक की तायद भी कर रहा है, जिसको शिरक कह रहा है उसको उस शिरक की तायद भी कर रहा है। ये तो अभी साबित हो गया कि देवबंद की उलमा, ये सिर्फ एक मौलवी की बात नहीं है। ये मौलवी जो हमसे अभी बात किए हैं, ऐसे हर मौलवी देवबंद के सारे बरेलवियों को मुशरिक कहते हैं, कब्र परस्त कहते हैं, कब्र पुजवा कहते हैं। हालांकि कब्र पुजवा मुशरिक ये लोग हैं। अल्लाह ताला ऐसे दोगला देवबंदी खबीसों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन।